Hello student, welcome to Backbenchers Chemistry. In our videos we cover Maharashtra State Board Chemistry syllabus. So let's start. Reaction of alcohol with hydrogen halide. अब in this type of reaction we need to understand कि हमारे पास में halide कौन कौन से हो सकते हैं. तो it may be chloro, bromo, iodो because फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए we can take this reaction. So let's start with the first chlorine. तो अगर हम alcohol को जनरल रिएक्शन लेते हैं, इफ़ वी ट्रीट अल्कोहल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 and this HCl is concentrated. So all together when we are having this kind of reaction, so this reagent, which reagent, the concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent, and we'll get what? We'll get RCl as a product and water is removed as a byproduct. So what will happen here? यहाँ का H OH और यहाँ का H क्या हो गया? रिमूव हो गया इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड वी गॉट अल्काइल क्लोराइड एज आ प्रोडक्ट. तो अल्काइल क्लोराइड क्या मिला है हम लोगों को? प्रोडक्ट मिला है यहाँ पर, ये आपको समझ के लेना है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने? विल टेक एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल. तो हमने एग्जाम्पल में क्या समझना है, क्या है हमारे पास? तो हमारे पास में है इथेनॉल CH3 CH2 OH और इसमें हम डालने वाले हैं कॉन्क HCl और एरो पे हम क्या लेने वाले हैं? एनहाइड्रस ZnCl2. तो ये दोनों को क्या कहते हैं? ल्यूकेस रिएजेंट. व्हाट विल हैपन? CH3 CH2 and Cl get as a product and water remove as byproduct. तो हमने क्या किया है? इथाइल क्लोराइड बनाया. तो दे में आस्क यू कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड. तो वी नीड टू नो कि वी विल यूजिंग हियर ल्यूकेस रिएजेंट. व्हाट इज ल्यूकेस? LUCAS, ल्यूकेस रिएजेंट. तो आपको इसके बारे में याद रखना है. सो व्हेन वी ट्रीट अल्कोहल with HBr. What is HBr? Hydrobromic acid. So when we treat alcohol with hydrobromic acid with presence of NaBr and H2SO4, so what you will get? You will get RBr and water remove as a product. So this type of reaction you will get when you treat alcohol with the hydrobromic acid. Next they said if we are having alcohol and will treat with hydrogen halide, तो what will happen on warm condition, like heat करते ही water molecule क्या हो जाएगा? remove as an byproduct and we will get RI as a major product. So this was the reaction of dehydration of alcohol. Under this heading we will learn how we can react alcohol with sulfuric acid and will get dehydration of alcohol always lead the product alkene. So we'll understand this by using an example. If we'll react alcohol, example, if we are having butane 2-ol. What is butane 2-ol? CH3 CHOH CH2 CH3. So the name of this compound is but 2-ol. So dehydration is involved in removal of water molecule. So we need concentrated sulfuric acid here. Now what will happen? We need to understand this thing कि हमारे पास OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो अल्फा है और डिहाइड्रेशन कभी भी अल्फा बीटा होता है. तो इन दिस केस वी आर हैविंग 2 बीटा. ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है. तो पॉसिबल है कि एक बार यहाँ का निकल जाए
वाटर। अब ये वाटर डायरेक्ट नहीं निकलता है, वी नीड टू यूज व्हाट, समटाइम अल्कली। अब क्या होगा ना, यहाँ का OH निकल रहा है तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस, एक बार हो सकता है कि जो आपके पास में वाटर है वो कहाँ का निकले, यहाँ के H के साथ में। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दिस इज ब्यूट 1 in and this is but 2 in. So now we need to decide the major one. So according to Sitzef rule, the more substituted alkene is a major product. So how we can decide the substitution? So this is the doubly bonded carbon and यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे ये है डबली बॉन्डेड कार्बन, तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 है। जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है ज़्यादा, तो इस वाले केस में सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, इसीलिए ये हमारे क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ऊपर वाला अल्कीन क्या है हमारे पास में, माइनर प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान देना है कौन से टॉपिक में, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल के टॉपिक में। एंड हमने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया था, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया था, सिट्जिफ लॉ और सिट्जिफ रूल वी कैन से।